دیکھو ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ سرداری نظام ہمارے علاقے اور ہمارے قوم کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. یہاں ہمارے تعلیمی نظام ہو یا دوسرے جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، تو بہرحال اس میں جو سرداروں کا بڑا جو ہے اس میں وہ تھا کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکیں، تو ہم اس کے خلاف ہیں. ہم بولتے ہیں سرداری نظام ختم ہو. نہیں سر، میں تو یہی کہتا ہوں یہ اس کو شاید علم ہی نہیں ہے. اور ہمارا خاص کر ہم جو قرآن کے حساب میں کہتے ہیں ہمارا جو بارڈری نظام ہے، تو موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے ہمارے ساتھ کوئی بھی کاپریٹ نہیں کیا ہے، اور ہمارا پورا شہر ہے، علاقہ ہے، اسی وجہ سے پیچھے جا رہا ہے. ہمارا کاروبار بزنس ہے اسی وجہ سے ٹھپ ہو رہا ہے، مگر ہمیں اس سے امید نہیں ہے کہ اس وزیر اعلیٰ سے ہمارے کاروبار اور ہمارے شہر میں امن بحال ہو جائے. ہاں ضرور یہ تو لے جا سکتا ہے. اگر ایک انسان کو اگر 2 ٹائم کا روٹی نہیں ملے اپنے گھر میں، تو ظاہر ہے وہ تو آگے نکل جائے گا، کسی کا چھیننے کی کوشش کرے گا، مارنے کی کوشش کرے گا. ظاہر ہے وہ تو یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت نقصان چیز ہے. اور یہ مہنگائی تو اس لیے بڑھ رہا ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مہنگائی کے ساتھ کاروبار بھی ٹھپ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ نقصان کی طرف جا رہا ہے. سر اصل بات یہ کہ فوج کا کام شہر کا نہیں ہے کہ ہم کہیں شہر کے اندر، ہمارے ابھی تربت شہر کے اندر جتنا چیک پوسٹیں ہیں، ہم بولتا ہے یہ سرحدوں میں رہے تاکہ ہمارا جو سرحدوں کا علاقہ ہے امن رہے. اور ہمیں امید بھی ہے کہ وہ جو زیادہ اپنا جو سرحدی اپنا کام انجام دیں گے بخصوص شہر سے. بالکل یہ ضروری ہے. دیکھو 2.5 لاکھ تو ختم نہیں ہونا چاہیے، ان کی بات سننا چاہیے. کیوں گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہمارے پاس بھی کمیاں ہو گئیں، ان کے پاس بھی کمیاں تھیں جب وہ نکل گئے، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ 2.5 لاکھ ہونا چاہیے، اس سے ملنا چاہیے، اس سے بات، تاکہ ہمارا علاقے میں جب تک آپ 2.5 لاکھ نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں ہتھیار کے زور پہ، نہ وہاں سے نہ ادھر سے کوئی رزلٹ نہیں آئے گا. 2.5 لاکھ سے شاید ہمارے جو علاقے امن میں آ جائے. سر ہمیں تو ابھی پیکج نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. ہم کہاں پیکج آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے. تو جب ان لوگوں کے اپنے پاس کاغذی کارروائی ہے، باقی ہم لوگ عوام نہیں دیکھ رہے ہیں. جب اگر پیکج آوے تو عوام خوشحال ہوگا، تو ابھی ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں اصل بات ہے کہ بی ایریا کے آج ابھی ہمارے جو تربت ہے، بلوچستان سے تربت بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، یہاں آبادی بڑھ چکا ہے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بی ایریا کے اپنے بھی علاقے کے کام ہیں، ہمارے یہاں شہر میں اتنا جو رش بڑھتا ہے، یہاں جو دفتری کارروائیاں ہیں، ڈی سی یا کمشنر، ہمارا کہنے کا مطلب کہ بی ایریا جو وہاں کا ڈی سی علیحدہ ہو، اور اے ایریا کا ڈی سی یا کمشنر یا اس میں جو ڈی پی ہو، تو ان کے علیحدہ یا نادرہ کا کام ہے وہ ان کے اپنے علاقے شہر میں ہونا چاہیے. 2 ہوں یا 3 ہو، بلیدہ، تم اور تربت. جیسا تربت ڈسٹرکٹ ہے، بلیدہ کا جتنے بھی کام ہیں، نادرہ کا کام ہو یا پولیس لیویز کا کام ہو یا ڈی سی کا کام ہو، جتنا بھی ڈی سی ہو، کمشنر ہو، اس کا علیحدہ ہونا چاہیے. سر اس میں تو ہمارے اندازے کے مطابق ہمارا لیویز خود صحیح ہے، کیونکہ لیویز بلوچیت ہے، وہ اپنا طرز طریقہ وہ خود جانتے ہیں. لیویز اپنے برحال اپنے جگہ میں صحیح ہے. ہاں پولیس میں جنم ہونے سے ہمیں شاید پہلے بھی ہوا تھا 1-1.5 سال، وہاں کوئی فرق نہیں پڑا. سر دیکھو یہ تو خیر بڑا شہر ہے، بڑا علاقہ ہے، کچھ لوگ خوش بھی ہیں، کچھ لوگ ناخوش بھی ہیں. اور ہمارا یہ درخواست ہے ان لوگوں سے کہ ایف سی ہے یا ہمارا دوسرے ادارے ہیں، وہ عوام سے نزدیکی کریں، ان کے پرسحالی کریں، ان کے جو ہے حقوق کے علاقے کے معتبرین ہیں، علاقے کے نمائندے ہیں، اس سے معلومات لیں شہر کے حوالے میں، علاقے میں، تاکہ سب اکٹھا ہو کے علاقے کے لیے ترقی کے لیے کام کریں. یہ تو شہر کا معاملہ ہے. شہر تو ہم تو یہ کہتا ہے کہ یہاں جو جتنا ہمارا چیک پوسٹیں ہیں جو شہر کے اندر لگے ہیں، ہمارا کہنے کا مقصد یہ بھی یہاں سے شہر سے اگر نکل جائیں اپنے سرحدی علاقوں میں، دوسرے جو ہمارے بہت سے ایشو ہیں، جیسا بارڈر کا ایشو چل رہا ہے، تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے جو علاقے کے معتبرین ہیں ان سے بیٹھ کے، اور باقی جو مسائل ہیں ان سے بیٹھ کے ان سے حل کریں. سر دیکھیں، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، سرداری نظام کا جو مکران، اسپیشلی آپ مکران کو دیکھ لیں تو مکران میں ابھی تک سرداری نظام یہاں رائج نہیں ہوا ہے، اور مکران میں سرداری نظام ہے ہی نہیں. تو اسی لیے میں
ये जहाँ तक मेरी सोच है, मैं ये कहता हूँ कि मकरान में मेरे सामने इस टाइप के वो नहीं गुजरे हैं। तो सरदारी निज़ाम के हवाले से मैं यही कहता हूँ कि बलूचिस्तान स्पेशली तो मकरान में सरदारी निज़ाम है ही नहीं। देखिए मकरान तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे में, यहाँ सरदारी निज़ाम नहीं है तो फ़ायदे में है। बाकी यहाँ के लोग जमहूरियत पसंद हैं, पर यहाँ सरदारी निज़ाम है ही नहीं, आप ये समझें। सर देखें बात यह है कि जहाँ तक पैकेज की बात है तो पैकेजों में हमें इतना उम्मीद वो नहीं है कि हम पैकेजों से उम्मीद नहीं। देखो बात तो हकीकत ये है कि पैकेज हों या जो भी हो, अक्सर बेशतर बड़े मिनिस्टरों के लोग आते हैं, वो स्पेशली एक अगर आप समझ लें कि अगर वैकेंसी भी आते हैं तो इंटरव्यू जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए ये लोग करते हैं, लेकिन दर हकीकत ये सारे सीटें एडवांस ही बुक हो गए। पीएन के सीट से लेकर 18 ग्रेड तक सीटों तक वो तो पहले ही चले गए। देखिए मौजूदा हुकूमत से तो हम सेटिस्फाई है ही नहीं, साफ बात है। मौजूदा हुकूमत आप समझ लें कि एक हद तक कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हुआ है भाई, मौजूदा हुकूमत ने दिया क्या है अवाम को? अवाम जलील हैं, ख्वार हैं, अजाब है, सारे रो रहे हैं, महंगाई का रोना रो रहे हैं। बाकी जस्ट तसल्लियाँ ही अवाम को दे रहे हैं और अवाम को कुछ मिला ही नहीं है। गरीब दिन ब दिन गरीब तर हो रहा है और अमीर दिन ब दिन अमीर तर हो रहा है। और यहाँ स्पेशली आप बलूचिस्तान को देख लें तो वो है ही गरीब। बलूचिस्तान तो गरीब नहीं, लेकिन बलूचिस्तान को गरीब किया है, बलूचिस्तान के हवाम ही गरीब हैं, रो रहे हैं बेचारे, कहाँ सेटिस्फाई हैं इस हुकूमत से। सर देखिए जहाँ तक मेरा नज़रिया है और मेरा ताल्लुक़ है, मैं यही सोचता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच का वो है कि मैं ऐसा कोई बंदा नहीं देख रहा हूँ जिसमें ऐसा कोई मर्द मुजाहिद नहीं देख रहा हूँ जो बलूचिस्तान के हकीकत वो दर्द को अपना दर्द समझे। सारे पेट के पुजारी हैं भाई, हर किसी को अपने बस पेट का गम है। देखिए माशी मसाइल ये है कि पहले भी जो लोग थे वही गरीब, वही बसगर, आप समझ जिस तरह जलील थे, आज भी उसी तरह जलील है। मईशत बेहतर नहीं हुए बलूचिस्तान की। अल्लाह करे इंतहा पसंद ना बने भाई, ये हमारी दुआ है, कौम को एक अच्छी राह पे ये लोग गामजन करें। बेहतर तो यही है, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ के गरीबों को बसर रोज़गार करें, यहाँ के गरीबों को रोज़गार दे, यहाँ के गरीबों की रोज़गार ना छीने। जब उनको रोज़गार देगा, उनको आप समझ लें कमाने के कुछ ज़राए होंगे, तो वो लोग ऑटोमेटिकली इंतहा पसंद की तरफ जाते ही नहीं है। वो तो हर कोई अपने रिस्क हलाल के पीछे ही लगा रहेगा। सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल में लोगों को रोज़गार देना सबसे बड़ा मसला। जब उनको रोज़गार होगा, और बॉर्डर ट्रेड के आप हवाले से देख लें तो ये बॉर्डर है, बॉर्डर जब खुलेगा तो रोज़गार होगा। बॉर्डर से हट के बहुत सारे और भी मौके हैं, उनको चाहिए कि यहाँ गरीबों के लिए कोई ऐसा पैकेज, कोई ऐसा चीज़ बनाएं, कोई ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि वो गरीब भी अपना रोज़ी रोटी कुछ करे, दिन रात वो इज़्ज़त से। सही ना? बिल्कुल, सरदारी निज़ाम से हमारे इलाका, हमारा मुल्क सब मुतासर हैं इससे। ये सदियों से पाकिस्तान बनने से पहले भी यही निज़ाम राज था, आज तक वही उनका तसल्सल क्या है वो अभी तक चल रहा है। इससे हम मुतमईन भी नहीं हैं, इसको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत हैं और इस टाइम मौजूद हैं। वो जमात इस्लामी की शक्ल में मौजूद है, सिराजुल हक की क़यादत में। इंशाअल्लाह इस मुल्क का वाहिद हल, और इस बदअमनी का हर हवाले से, बेरोज़गारी हो, सेहत के हवाले से, अगर इसका हल है तो जमात इस्लामी के पास है। बिल्कुल मुतमईन है, बेरोज़गारी के हवाले से, सेहत के हवाले से और बदअमनी के हवाले से। जी हाँ, बेरोज़गारी में जराइम जन्म लेगी। जब बेरोज़गारी होगी तो ये होते रहेंगे। भाई मेरे मसला, सबसे बड़ी जो मसला है तो बेरोज़गारी है। अगर ये नहीं है तो नहीं होगा। मैं ये तो कहता हूँ कि चौकीदार को जिसकी ड्यूटी जहाँ, उसको वहाँ होना चाहिए। बस सबसे हमारे अगर मकरान के वाले से आप बात कर रहे हैं तो यहाँ सबसे बड़ी मसला बॉर्डर हमारा। अगर यह बॉर्डर खुल जाए तो तकरीबन हमारे मसला एक हद तक हल हो जाएगी। ये लोग जो मोटरसाइकिलें हमारी चोरियाँ करते हैं या डकैतियाँ करते हैं, ये बेरोज़गारी की वजह से है। जलावतनी मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये खुद साख्ता जलावती है नहीं, हकीकतन जलावतन हैं। अगर हकीकतन है तो उनका हल गवर्नमेंट के पास होगा। वो ऐसे हिकमती अमली तय करें कि वो लोग आ जाएँ, हमें पकड़ के दीवार से ना मारें, हमें तसला दें, हमें रोज़गार दे दें, इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। हमारे लोग दुबई में जाते हैं, 4 घंटे की सफ़र नहीं है, 2 घंटे का सफ़र, ऐसे कानून का भी पासदारी कर रहे हैं, सब चीज़ मतलब उनका कोयला अनाज का मसला वहाँ नहीं है। यही लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, पर वहाँ ये लोग ऐसे नहीं करते। ये तो सबसे बड़ी मसला हो रोज़गार का। साबिक़ा दौर में हमने ये सरदारी निज़ाम देखा, जिसमें रुकावट तो खैर हमारे ख़ासकर गरीब लोगों के लिए तो रुकावट ही रुकावट है। बाकी जो है सरदारी निज़ाम के हवाले से अगर देखा जाए, बिल्कुल मेरे जो तजुर्बे के तहत मिसाल इसमें
ऐसा रुकावट के अलावा और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल ये तो हकीकत है। आगे चलकर इंतहा पसंदी में ज़रूर एक रास्ता ही होगा, क्योंकि जब बंदा मकरूज़ होगा, कर्ज़दार होगा, तो आखिर और कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल मैं इस बात पर, ये तो खुशी की बात है अगर हुकूमत और रियासती इदारे इन लोगों को वापस माल कर मिसल वापस पाकिस्तान में लाकर यहाँ अपने जो हमारा बिज़नेस है, हमारा जो महाशी जो सूरत हाल है, जो जिस तरह मिसाल वो ख़राब होता जा रहा है, तो अगर इनको मना के लाएँ तकरीबन इसमें, तो हमारा खास कर हमारे बलूचिस्तान में तो खुशहाली तो आएगी। देखो इनके हवाले से मैं अगर कह दूँ, सबसे पहली बात ये तो वैसी शहर के अंदर इनको रहना चाहिए नहीं था, क्योंकि शहर के अंदर इंतज़ामिया है, पुलिस इदारे हैं और लीवीज़ इदारे हैं, तो ये उनका इलाका है। बाकी इन लोगों का जो पहाड़ी इलाकों में ये जो है बॉर्डर वगैरह हैं, इनका काम वहाँ क्लोजिंग करना, वहाँ अपना जो तफ्तीश वगैरह करना, यहाँ इसको मैं ये तकरीबन देखने में तो ऐसी बातें हो रही है जिसमें देखो मुसलसल अभी तक तो मेरे ख्याल में 4 से 5 साल हो रहा है, उसके ज़ायद गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हमने तो एक ही नहीं देखा है कि हमारा जो साउथ बलूचिस्तान के लिए उसमें अमली तौर पर काम हुआ है। नहीं, देखो यहाँ आखिरी जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी क़यादत पर ना हम खुश है ना हमें खुश रहने देता है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है यहाँ जब से हुकूमत आया हुआ है आज तक, तो तकरीबन हमारे मुल्क में जो साबिक़ा हुकूमत है मेरे ख्याल में बेहतर थे ये मौजूदा हुकूमत के निस्बत से। बेरोज़गारी जो है, बदहाली, ये सारा कुछ है। बाकी जहाँ तक आने वाला हुकूमत में सबसे पहली रुकावट ये है, यहाँ जो है हुकूमत अगर अवाम जो चाहता है उसको लाया नहीं जाता है। जो अवाम का जो वोट में आते हैं उसको तो लाया नहीं जा सकता है, अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं हुकूमत। ये तो मैं कहता हूँ इसके लिए अगर वफाक का मोहलत दे, मौका दे उन लोगों को जो हमारे क़यादत बने, हमारे बातों को आगे ले जाएं, उन लोगों को हुकूमत का मौका दें, तो इससे मैं कहता हूँ इंशाल्लाह मुल्क में खुशहाली आएगी। जब से हमारे तुर्बत में, जहाँ से मेरे नज़र में तो एक तो BNP मैंगल जो है, एक जो है JUI जो है, और मेरे नज़र में और भी कुछ पार्टियाँ हैं जो मेरे आंखों के सामने हैं, बिल्कुल इन लोगों को आने नहीं चाह रहे। हालांकि यहाँ के मकरान के जो अवाम है उनको चाहते हैं, मगर यहाँ तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना फैसला होता है। तो हमारा समझ लो बातें ऐसा ही बातें हैं। देखो अगर बी एरिया को ए एरिया में जम अगर हुआ तो ये खैर एक तो खुशी की बात है, क्योंकि अक्सर बी एरिया वालों तो यहाँ अक्सर लोग आते हैं, यहाँ तंग और जलील दस्ती है, क्योंकि एक बी एरिया वाला अपना एक फॉर्म दस्तखत करने के लिए एक तहसीलदार के पास आता है, वहाँ मौजूद ही नहीं है, ज़रूर उसको ए एरिया आना पड़ता है। जबकि बी एरिया को अगर ए एरिया में जम कर ले तो ये खुशी की बात है। लीवीज़ को पुलिस में जम करने से वैसी वही मिसाल है, लीवीज़ और पुलिस में यहाँ कोई अच्छा किरदार था नहीं और नहीं है, क्योंकि हमने खुद देखा है ऐसे ऐसे जगहों में, बल्कि अभी इसी रमज़ान मुबारक में दश्ती बाज़ार कब्रिस्तान के अंदर एक आदमी को जब मारा गया, पुलिस 2 घंटे के बाद पहुंचा। तो लीवीज़ और पुलिस का चीज़ वही है, लेकिन अगर इसमें जम किया जाए तो इसमें फ़र्क वही है। जो जिस तरह हम एक मिसाल देते हैं, जो कहते हैं पानी के बारिश के सामने खड़ा होगा या नहीं, उसके पानी जो नौरे सर